السلام علیکم. تو آج جو ہے BSM ڈیولپرز ایونٹ کروا رہے ہیں گلوبل اسٹیٹ کے ساتھ مل کے. تو وہاں پہ جو نیو پروجیکٹ آ رہے ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے. آلریڈی ان کے 3 پروجیکٹ چل رہے ہیں. گولف گوادر سٹی وہ گوادر میں ہے. پھر منڈی بہاؤدین کے اندر نیو میٹرو سٹی بنا ہے. کھاریاں سرائے عالمگیر کے اندر نیو میٹرو سٹی بنا ہے. پریویس ہسٹری بہت اچھی جا رہی ہے. ڈیلیور بھی جو ہے ٹائم سے کر رہے ہیں اور جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے ڈیولپمنٹ کے اندر اس سٹائل سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. تو اب جو ہے نیو پروجیکٹ آ رہا ہے GT روڈ کالا شاہ کاکو کے اوپر نیو میٹرو سٹی. آج جو ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں گے, بریفنگ دیں گے, ٹھیک ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ لوگ لاہور کی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں. تو آج جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ آنے والی جو بھی بہتر انفارمیشن, بہتر فیوچر انویسٹمنٹ ہو وہ آپ تک پہنچے اور ہم سب مل کے کام کریں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پہلے کوئی آیا نہیں کرتا تھا اور آج ماشاءاللہ یہ جگہ ڈیولپ ہے. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی کہوں گا کبھی بھی اب وہ ذہن سے باتیں نکال دیں کہ یہاں پہ کون آئے گا. آپ کو جدھر جگہ ملتی ہے, پہاڑوں میں بھی جگہ اگر آپ کو صحیح مل رہی ہو نا آپ لے لیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہی ہوگا. زمین ایک بہت اچھی نعمت ہے, میرا اس پہ پورا یقین ہے. اگر آپ کی اچھی پرچیزنگ ہو اچھے لوگوں کے ساتھ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. جی آ جائیں. جی تو ادھر جو ہے میں بھی کرتا ہوں. میری ڈیوٹی اصل میں ہو رہا ہے, صرف مسئلہ یہ ہے. باقاعدہ آغاز کر دیں گے. تو باقی میں گلوبین سے پھر ریکویسٹ کروں گا جتنے گیسٹ آ رہے ہیں آپ انہیں پراپر ویلکم کریں, انہیں سیٹس انہیں دیں اور جو بھی میکسیمم ہو سکتا ہے آپ ان کے ساتھ ٹریٹ کریں. باقی نجم بھائی فائن اسٹیٹ میں انہیں گلوب اسٹیٹ کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. عاطف صاحب پراپرٹی سے جو کہ ابھی کچھ دیر میں ہمیں ایک زبردست بریفنگ دیں گے جو کہ لرننگ کے لیے بہت اچھا ہوگا. خاص طور پہ جو ینگسٹر یہاں پر آئیں ان کی لرننگ پوائنٹ آف ویو سے وہ سیشن بہت زبردست ہوگا. وہ اس کو سیریسلی سنتے ہیں اور اس کو آگے انہیں فائدہ مند ہوگا اس کا. باقی میں ظالم اسٹیٹ سے ٹیم آئی ہے, صوفیہ اور ان کے جو ممبرز ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں. نعمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ, نعمان برادرز DHA سے, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. احمد بھائی پاک ریئلٹر سے, ہمیشہ احمد بھائی نے گلوب اسٹیٹ کو ٹائم دیا ہے, آنر دیا ہے, آپ کا بہت شکریہ. احمد بھائی پاک ریئلٹر DHA سے. پچھلے 2 دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ قرآن اشارت اپنے ٹیم کے ساتھ آپ کو ویلکم کرے گا اس سمٹ میں, ڈیلر سمٹ 2024 میں. تو آج آپ کے یہاں پہ آنے کا سب سے بڑا شکریہ قرآن اشارت اور اس کی ٹیم آپ کا شکریہ تہہ دل سے ادا کرتی ہے کہ آپ اس ایونٹ میں اپنی مصروفیت میں سے دور دراز علاقوں سے اور غریب سے بھی ٹائم نکالی ہے. تو قرآن اشارت ہمیشہ کی طرح اپنی گلوب اسٹیٹ کی ٹیم اور جو یہ آپ لوگ ہیں یہ بھی ہماری ٹیم ہے, ہم سب ایک ٹیم کے ساتھ ہیں.
हमारा जो स्लोगन है टुगेदर वी ग्रो का अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी एक जिंदा मिसाल है। और कुछ ही देर में हमारे चीफ गेस्ट ज़रून मसूद साहब यहाँ पे तशरीफ आवर होंगे और हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे होस्ट मौजूद है मिस मानू, वो इस प्रोग्राम को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ पे चेयरमैन साहब बशारत अहमद साहब मौजूद हैं, उनकी भी तशरीफ आवर का शुक्रिया। और CEO ग्लोब से डॉक्टर अरशद महमूद कुरैशी, उनकी भी तशरीफ आवर का बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारे नाम ऐसे लिए हैं कि अब मुमकिन नहीं कि सबका नाम फर्दन याद आ सके। उनसे कंट्री हेड BSM ज़रून मसूद साहब कंट्री हेड फ्रॉम BSM। और ये हमारे बहुत एजाज की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस डीलर समिट में ज़रून मसूद साहब हमारे बॉस इस इवेंट में शामिल हो चुके हैं। अब हम इस इवेंट का बाकायदा आगाज करेंगे और ज़रून मसूद साहब from the team and from all the participants we welcome you. So nice of you. Thank you. तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया और अब इसकी बाकायदा एक चलेगी ट्रेन जो इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम। और जिसका क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स को जाता है कि पहले समिट से हमने इस सीरीज को आगाज किया है। हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर ताकि हम इसको मैक्सिमम जो इसकी चीज़ें हैं उसको आप तक पहुंचा सकें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा CEO डॉक्टर अरशद महमूद साहब ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स के स्टेज पे तशरीफ लाएं और आज के प्रोग्राम की ग्लोब स्टेट की ब्रीफिंग से प्रॉपर आगाज किया जाए। डॉक्टर अरशद महमूद साहब CEO ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स। सबसे बेहतरीन लोकेशन मैं ग्लोब स्टेट की तरफ से आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मसरूफियात करके इस समिट में शिरकत की तशरीफ लाए। जहाँ तक ताल्लुक है इस समिट को मुनक़िद करने का, तो ये आज लाहौर की तमाम रियल स्टेट से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं उनके लिए आज खुशी का दिन है कि ऐसा डेवलपर BSM डेवलपर जो कि मुख्तलिफ शहरों में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ के अब लाहौर की तरफ आ रहा है, तो हम लोग उस डेवलपर को खुशामदीद कहने के लिए हरावत दस्ते में मौजूद हैं। असल में इससे पहले भी मैं मुख्तलिफ डेवलपरों को साथ बातचीत चलती रही है, उनके तमाम तर लॉन्चिंग की सेरेमनीज में हम जाते रहे, लेकिन वहाँ पर हम सिर्फ खासतौर पे हम एक चीज़ को इंश्योर करते थे कि भाई जो चीज़ आप वादा कर रहे हैं वो आया क्लाइंट को मिलेगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हम ये सवाल नहीं करेंगे क्योंकि हम गवादर में, सराय आलमगीर में, गुजर खान में और मंडी बहाउद्दीन में इनकी कामयाबियाँ और इनकी डिलीवरी दे चुके हैं। लिहाजा हम अब आंखें बंद करके इन पर यकीन करते हैं और यही वजह है कि हमने आप सबको भी इस ब्रीफिंग में शिरकत का मौका दिया कि आप भी आएँ और इनका दस्ते बाजू बने, क्योंकि लाहौर में जो स्कीम है वो अपने हुजूम के एतबार से माशाल्लाह काफ़ी बड़ी होगी और आप सब के लिए मौके उसमें होंगे। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर का, ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर 2019 में से BSM के साथ एसोसिएटेड है और BSM के साथ माशाल्लाह तनदेही से काम कर रही है। हमने 2019 में भी सबसे बेहतरीन सेलिंग एजेंट्स का सेलिंग स्टेट का सर्टिफिकेट हासिल किया, 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी और अब 2023 में भी। तो हमने तो इन पर पूरा हमारा फेथ है।
اور ہم جو ہے نا پوری دلجمی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس کام ان کے ساتھ کام کی نوعیت ایسی تھی کہ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بھی بڑھانا پڑا، اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھانا پڑا، اور جس کے نتیجے میں آج ہم تقریباً 200 سے زیادہ سیلز ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی گائیڈنس میں اور محنت سے ہم نے ایک بہترین آئی ٹی کا نظام قائم کیا، جو کہ گلوب اسٹیٹ اینڈ بلڈر کی ایک ہائیلی کوالیفائڈ آئی ٹی کی ٹیم ہے، جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں گلوب اسٹیٹ اینڈ بلڈر کو اسسٹ کرتی ہے اور ان ٹرن اپنے ڈیولپر کو اسسٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہماری سیلز ٹیم ہے، یہ بیریا ٹاؤن میں جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں اس کی نمبر 1 جو ہے نا سیلر ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہماری سیلز ٹیم میں انتہائی تجربہ کار بھی اور انتہائی کوالیفائڈ لوگ بھی موجود ہیں۔ کئی ایک انجینئرز جن میں الیکٹریکل انجینئرز ہیں، مکینیکل انجینئرز ہیں، ٹیکسٹائل انجینئرز ہیں اور کیمیکل انجینئرز ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ انجینئرنگ میں وہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ ایک بات ہے کہتے ہیں کہ فائنلی واٹ میٹر از دا پے چیک، کہ بھائی اینڈ پر مجھے ملے گا کیا۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی میری سلامتی اور میری اکنامکس کی سلامتی، میری معاشیات کی سلامتی جو ہے وہ اس شعبے میں ہے، تو یہ یہاں پر دلجمی سے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، جو انجینئرنگ انہوں نے کی، جو تعلیم انہوں نے حاصل کی، سب نے ان سب نے ان کے اندر ایسی صلاحیتوں کو پیدا کر دیا ہے کہ یہ ماشاءاللہ اب ایک بہترین پروفیشنل ٹیم کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے بی ایس ایف کے بارے میں کچھ کہنا کوئی بڑی بات ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ جہاں بھی کام کیا بہترین انداز میں کیا، بہترین ڈلیوری دی، اپنے وعدوں کے مطابق دی، اور ہمیں پورا امید ہے کہ لاہور کے اندر بھی یہ تمام اپنے جتنے بھی ایسوسیٹس ہوں گے، اپنے پارٹنر ہوں گے، ان کی تسلی کے مطابق، ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق اور ان کے تمام تر کلائنٹس کی سیٹسفیکشن کے مطابق ڈلیوری دیں گے۔ اور میری امید ہے، میں اللہ کے در سے امید کرتا ہوں کہ ہمارا سب کا، کیونکہ آپ سب ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ یہ تجربہ انتہائی کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک اس میں کامیابی دے۔ یہ سفر گلوب اسٹیٹ کا سفر بی ایس ایم کے ساتھ کہاں سے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، کیا کیا اس کی سکسیس ہے، کیا کیا اس کے مشکلات، اور ہر چیز ایک ویڈیو میں ہم نے سم اپ کی ہے۔ تو یہ بی ایس ایم سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں، پلیز۔ DSM Developers Private Limited.
آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا ان کے لیے اور سیٹنگ کا ارینج کر دیا گیا پیچھے. تو عاطف صاحب ای پراپرٹی سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ 2024 ریئل اسٹیٹ کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے, روڈا سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن دیں گے. اور میں اسپیشلی ینگسٹر سے ریکویسٹ کروں گا, جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو تو پتہ ہے, لیکن میں ینگسٹر سے ریکویسٹ کروں گا وہ اس چیز کو سنیں. ان کے لیے بہت ہی ایک زبردست لرننگ سیشن ہوگا اور وہ انہیں آنے والے ٹائم میں بہت فائدہ دے گا. تھینک یو سو مچ. عاطف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عاطف اقبال ہے اور میرا تعلق ای پراپرٹی سے ہے. میں 2004 سے ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ایک ہی مقصد کے ساتھ اس شعبے کو لے کے چل رہا ہوں, لرن شیئر اینڈ گرو. سیکھیں, سکھائیں اور آگے بڑھیں. میں مشکور ہوں ٹیم گلوب اسٹیٹ کا جنہوں نے مجھے آج اپنی ریئلٹر کمیونٹی کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا. میں آج آپ کو بریف کرنا چاہوں گا کہ لاہور کی پراپرٹی مارکیٹ کی فیوچر ڈائریکشن کیا ہے, لاہور کیا تھا, آج کہاں ہے اور آنے والے وقت میں کہاں جا رہا ہے. اور میں تمام معزز مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ لاہور شہر کی ہسٹری کیسے چلی گی اور لاہور آج کہاں پر ہے. اوپن کی ہے جو کہ لاہور کا پورا ایریا دکھا رہے ہیں اور اس پر کچھ لینڈ مارکس ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لاہور پہلے کیا تھا اور آج کہاں ہے اور کس طرف کو جا رہا ہے. آپ کو یہ سامنے ایک بلو ایریا نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے ایک ریڈ ایریا ہے جو کہ وال سٹی لاہور کہلاتا ہے. یہ مغلوں کا ایک شہر ہے جس کو مغلوں نے آباد کیا اور یہ 13 دروازوں پر مشتمل شہر ہے. لاہور کی تاریخ تو اس سے بھی پرانی ہے, مغلوں سے بھی پہلے کی, لیکن ہم یہیں سے سٹارٹ لے کے آگے چلتے ہیں کہ مغلوں نے آ کے اس علاقے کو آباد کیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے انگریز یہاں پر آئے اور انہوں نے اس علاقے میں حکومت کی. اس میں آپ کو ایک روڈ نظر آ رہا ہے یلو کلر کا, چونکہ یہاں اس وقت میرے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے اس لیے میں آپ کو گوگل میپ شاید لائیو نہیں دکھا سکتا, لیکن میں آپ کو یہاں سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس روڈ کی اہمیت کیا ہے. اسے گرینڈ ٹرنک روڈ کہتے ہیں, جی ٹی روڈ. یہ روڈ جو ہے دلی سے کابل یا کابل سے دلی کے لیے بنایا گیا تھا. شیر شاہ سوری ہم نے کتابوں میں پڑھا جس نے اس روڈ کو تعمیر کیا. اس کو جرنیلی روڈ بھی کہا جاتا ہے. لاہور بالکل اس روڈ کے اوپر آتا ہے اور یہ آپ کو امرتسر نظر آ رہا ہے, یہاں سے نیچے یہ سیدھا دلی کی طرف چلا جاتا ہے اور یہاں سے اوپر آپ پشاور اور پھر کابل کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ لاہور کا ایک آغاز ہے جہاں سے ہم لاہور کو سمجھنا شروع کریں. جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا پاکستان بننے کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور میں لاہور میں سٹارٹ ہوتی ہے اور ایک اسکیم ہمارے سامنے آتی ہے اپر وال اسکیم کے نام سے, جس کو ہم اپر وال کہتے ہیں. یہ میاں میر کے پاس ایک اسکیم سٹارٹ ہوتی ہے 50s لیٹ میں. 60s کے لیٹ میں گلبرگ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے اور جوہر ٹاؤن جو ہے وہ 70s لیٹ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد 2000 جس میں ہمارے بہت سارے دوست یہاں موجود ہیں, مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں بحریہ کا کام کرنے والے, اور ہم بحریہ ٹاؤن پہنچ جاتے ہیں. اور اسی طرح اس وقت ہمارا جو آخری پروجیکٹ یہاں چل رہا ہے وہ مانگا منڈی کے پاس ہے جو کہ وکٹوریہ سٹی کے نام سے. دوسری طرف ہمارے پاس جو ڈائریکشن ہے وہ فیروز پور روڈ کی ہے اور یہاں پر ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ LDA کی
सेंट्रल पार्क तक पहुंच चुकी है। तीसरी तरफ जो हमारा DHA का प्रोजेक्ट है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का, वो ऑलरेडी हमने BRB डिफेंस लाइन को टच कर लिया है और वो फेज 7 का प्रोजेक्ट है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त लाहौर के अंदर टोटल 5 अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं। LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी और वॉल सिटी अथॉरिटी। पहली 3 अथॉरिटीज जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उनके अपने मास्टर प्लान हैं, उनके अपने जुरिडिक्शन है और अपना एरिया है। हमारा आज का मौजू जो है वो 2 अथॉरिटीज के लिए होगा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये सन 2020 में गजट ऑफ पंजाब में नोटिफाई की गई, उसका टोटल एरिया कितना है और उसकी हदूद क्या है। थोड़ा सा मैं आपको उसकी जुरिडिक्शन दिखाना चाहूँगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये सारा लाहौर का रिंग रोड का एरिया, ये बहरिया टाउन है और ऊपर जो हम एरिया देख रहे हैं ब्लैक लाइन में, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये तकरीबन 1,10,000 एकड़ का इसका नोटिफाइड एरिया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका इसके नाम से जाहिर है कि ये रावी के इर्द गिर्द जो एरिया है उसकी अर्बन प्लानिंग के लिए बनाई गई। किसी भी शहर में काम करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसका मास्टर प्लान क्या है और यही मास्टर प्लान हमें डायरेक्शन देता है प्रॉपर्टी की। अभी मैं आपके सामने मास्टर प्लान खोलूँगा लाहौर का LDA का 2050 मास्टर प्लान। इस वक्त आपके सामने लाहौर का LDA का 2050 मास्टर प्लान है जिसमें आपको ये ब्लू एरिया जो नज़र आ रहा है ये लाहौर का वो हिस्सा है जो कि पुराने लाहौर के साथ HZ1 अंदरून शहर के बिल्कुल साथ है। जब हम यहाँ लेगन में देखते हैं तो इसको कमर्शियल हाईलाइट भी कहते हैं। लाहौर में जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है वो इस एरिया के अंदर होती है। ये हम पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का पहला बड़ा शहर जो है वो कराची है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बिजनेस एक्टिविटी कराची में है और उसके बाद दूसरी बड़ी एक्टिविटी लाहौर के इस हिस्से में होती है और ये लाहौर की वो मेन मार्केट्स हैं, तजारती मंडियाँ हैं जिनमें से कुछ के नाम बादामी बाग, मिस्री शाह, महल, आजम क्लॉथ मार्केट, मिसू बाजार, अनारकली, सुआ बाजार और इसके अलावा बहुत सारी मार्केट्स हैं। 1947 में जब लाहौर बनते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया पाकिस्तान हम अलहदा होते हैं तो लाहौर तो पहले से मौजूद है। GT रोड से ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ सारी पॉपुलेशन है और इस सब पीछे कोई डेवलपमेंट नहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये डेवलपमेंट नीचे चलती जाती है और हम इस हिस्से से दूर होते जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको ब्रीफ किया कि यहाँ पर हमारे पास सेंट्रल पार्क, यहाँ पर बहरिया टाउन और इस DHA का फेज 7 है। तो हमारे पास इस वक्त एक ऑप्शन तो ये थी कि LDA को मज़ीद एक्सपेंड करके और नीचे लेते जाते तो हम आहिस्ता आहिस्ता लाहौर शहर जो असल शहर है जहाँ आज सारी मार्केट्स हैं, जहाँ सारी मंडियाँ, सारा बिजनेस होता है, उनसे डे बाई डे दूर होते हैं। तो 2050 मास्टर प्लान हमें दिखा रहे हैं कि ये LDA की बाउंड्रीज हैं। LDA की बाउंड्रीज अब 2050 के लिए ये डिफाइन कर दी गई। थोड़ा सा मैं आपको इस पर ब्रीफ कर दूँ। जिससे आप देख सकते हैं कि AR1 जो है वो डिफेंस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जो कि BRB के दूसरी तरफ आता है। ये सारा ग्रीन एरिया है, यहाँ पर किसी किस्म की भी मास्टर प्लान के तहत कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट जो है वो मना है। इसी में आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको नजर आएगा RZ5, ये एक्सपेंशन एरिया है जो हमारा असल आज समझने का टॉपिक है। ये LDA जो है उसके पास एक्सपेंशन की अब कितनी गुंजाइश है। तो RZ5 में हमारे पास सिर्फ 3 लोकेशन हैं। एक लोकेशन हमें ये नजर आ रही है जो कि सूर्य आसर रोड से नीचे है, ये बहरी एजुकेशन मेडिकल सिटी है और ये सूर्य आसर रोड है सीधा रायगढ़ को आ रहा है। एक लोकेशन हमारे पास ये है रायगढ़ शहर के साथ और एक लोकेशन हमारे पास छोटी सी बची हुई है जो कि हमें यहाँ नजर आती है, वो ये वाला एरिया। LDA के पास 2050 तक इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है अपने आप को एक्सपैंड करने की। आफ्टर 2050 आपको यहाँ नजर आ रहा है AR2 एग्रीकल्चर रिजर्व एरिया, ये लिखा हुआ है।
जब आप इसको मैप को देखते हैं 2050 तो आपको नजर आता है कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से नीचे AR2 का एरिया है जो कि मांगा मंडी के साथ इस तरफ है और NFC आपको नजर आ रहा है। तो आफ्टर 2050 LDA अगर एक्सपैंड करेगा तो इस एरिया की तरफ एक्सपैंड करेगा। LDA के बारे में बताने शुरू करने का मकसद ये है कि हमें एक चीज़ का पता लग जाए कि LDA की बाउंड्रीज अब हर तरफ से लॉक है और गवर्नमेंट एक नई अथॉरिटी को वजूद में लेकर आई है जिसका नाम है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेज 1 है, ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का फेज 2 है जिसके 2 हिस्से हैं, फेज 2B और फेज 2A। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ईस्टर्न बाईपास है जो काला शकाकुत तक आता है और यही आपको आगे सियालकोट मोटरवे M11 सियालकोट की तरफ ले जाता है। इसी ईस्टर्न बाईपास से आप घूमते हुए वापस फिर लाहौर बाईपास की तरफ लाहौर ठोकर न्याजबेग पे आ जाते हैं। इससे पहले जब कभी ईस्टर्न बाईपास नहीं था और जो लोग ठोकर वाली साइड पर थे और वो गुजरांवाला जाना चाहते थे तो वो हमेशा लाहौर बाईपास से काला शकाकुत और फिर सीधा गुजरांवाला की तरफ चले जाते थे। आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में परवेज दिगारी साहब ने काला शकाकुत प्रोजेक्ट के साथ लाहौर की तमाम नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी जो है उनके नए कैंपस जो है वो अमृतसर शिफ्ट करते हैं। LDA के अंदर कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो बाय LDA हैं और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव बाय LDA। बाय LDA प्रोजेक्ट में जैसे कि यहाँ पर गुलशन रावी, लालागार, सामाबाद, सत्तागार, इसी तरह आप नीचे आते हैं तो जौहर टाउन, गुलबर्ग, डारन टाउन, मुस्लिम टाउन और इस तरह जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट LDA का आया हुआ है वो LDA सिटी। इसी तरह LDA के साथ कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव बाय LDA, जैसे कि मशहूर नामों में टॉप मोस्ट डेवलपर बैरियर टाउन, लेक सिटी और कोऑपरेटिव में हमारे पास NFC, वाटर और इस टाइप के प्रोजेक्ट। इसी तरह रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वजूद में लाई गई है इसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो बाय रूडा आएंगे और कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव बाय रूडा आएंगे। आज का जो सेशन है इसमें हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2024 है इसमें ऐसा क्या होने जा रहा है या आने वाले वक्त में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम सब जो हैं आज यहाँ इकट्ठे हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने बताया कि लाहौर शहर के बिल्कुल पास इस वक्त 2 लोकेशन हैं जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की है, एक उनका फेज 1 और एक उनका ये वाला हिस्सा जो कि फेज 2A और फेज 2B पर मुश्किल है। ये ब्लू लाइन, ब्लू सर्कल जो मैं कह रहा हूँ ये वो एरिया है जहाँ लाहौर की तजारती मंडियाँ हैं और इन तजारती मंडियों की अप्रोच सिर्फ लाहौर नहीं है बल्कि पंजाब, बल्कि पाकिस्तान, बल्कि इनमें से कुछ मंडियाँ जो हैं वो आलमी सतह पर एशिया और पूरी दुनिया तक इनकी तजारत होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है पॉपुलेशन का और बाइंग पावर का और ये एक खुशकिस्मती है हमारे लिए और लाहौर वालों के लिए, वरना अमूमी तौर पर जो बड़े या पुराने शहर होते हैं उनमें शहर के साथ इतनी जगह खाली नहीं होती कि जहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लाया जा सके। लेकिन ये जो एरिया रावी के साथ साथ था ये एक फ्लड के फियर फैक्टर की वजह से इस तरफ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2020 में यहाँ एक प्रॉपर अथॉरिटी बनाई जाए जो कि यहाँ अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग करे और इस एरिए को एक अर्बन प्लानिंग के साथ आने वाली लाहौर की जो 2050 की आबादी की प्रोजेक्शन है 2.5 करोड़, इस वक्त लाहौर की आबादी जो है वो 1,24,00,000 है, तो ये एरिया 1,26,00,000 की आबादी के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसमें आपको ये लाइन नज़र आ रही हैं, ये लोगों का अमूमी क्वेश्चन यही होता है कि ये जो रावी है इसको गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल कर रही है। तो ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये 300 फुट के रोड रावी के दोनों तरफ बनाए जा रहे हैं जो कि एक रिटेन वॉल का काम करेंगे और पानी को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह ये जो झीझी रोड आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे बैराज बने गए, ये बैराज जो है ये पानी को रोकेगा जिससे ये एरिया जो है ये पानी से फुलअप हो जाएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो बुनियादी बनाने का मकसद है वो 2 हैं। हमें पता है कि लाहौर जो है इसमें आबादी बढ़ने की वजह से हमारा वाटर टेबल जो है वो डे बाई डे नीचे जा रहा है और हमारे पास लाहौर में कोई ऐसा खातर का वाटर रिजर्वायर नहीं है। अगर आज हमने ये काम न किया तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें इस पर कभी माफ़ नहीं करेंगे।
यही रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बुनियादी मकसद है कि एक वाटर रिजर्वायर लाहौर के अंदर बनाया जाए, जिसमें कि पहला बैराज यहाँ, दूसरा बैराज जो है वो फेज 2 के बाद, और तीसरा बैराज जो है वो पीछे फेज 3 के साथ बनाया जाएगा। ये बैराजेज जो हैं ये पानी को स्टोर करेंगे और एक 46 किलोमीटर की लेंथ, जो कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्लेम करती है वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट, तो एक 46 किलोमीटर का एरिया, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर जो है वो हमारे पास लाहौर में मौजूद होगा। इसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट हैं जिनको रिजर्व रखा जाएगा और मज़ीद जंगलात जो हैं उनमें इजाफा किया जाएगा, ताकि लाहौर जो है इस वक्त आपको पता है कि पिछले कई सालों से हम पोल्यूशन में पहले से 5 नंबर के दरमियान घूम रहे हैं। इस वक्त लाहौर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी दुनिया में है। ये एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये फॉरेस्ट है, और ये भी जो आपको एरिया नज़र आ रहा है फॉरेस्ट है। इसी तरह नीचे जब आप बैरियर टाउन तक चले जाते हैं, जहाँ पार्क व्यू का प्रोजेक्ट है, वहाँ भी आपको बहुत सारे जंगलात मिलते हैं, जो कि मेरे पास इंटरनेट नहीं ऑनलाइन, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। इस मैप में आपको बैराज नंबर 1, बैराज नंबर 2 और बैराज नंबर 3 जो है वो नज़र आ रहा है, जिस पर काम जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इस वक्त 300 फुट के रोड, ये जो मेरा आपको पॉइंटर नज़र आ रहा है, यहाँ पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बनाना शुरू किया जा चुका है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस वक्त 2 ही प्रोजेक्ट जो है वो जो उनके अपने हैं वो ऑफर कर रही है। इसमें एक सफायत वे और एक चहार बाग है। थोड़ा सा मैं आपको उनकी लोकेशन पर डिस्कस करता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है चहार बाग का एरिया है, जो कि मेन रिंग रोड के ऊपर लोकेट करता है, और ये रिंग रोड वही है जिसको हम पहले बंद रोड कहा करते थे। बंद रोड जो है उसके बनाने का भी मकसद यही था कि जो रावी का फ्लड का फियर फैक्टर था, लोगों को खौफ था, गवर्नमेंट ने जब ये बंद रोड बना दिया तो उसके बाद से ये पानी दोबारा कभी इस तरफ को नहीं आया। अब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यही काम इस दरिया के साथ साथ दोनों तरफ करने जा रही है, जिसकी वजह से दरिया जो है वो एक रिवर चैनल में कन्वर्ट होगा, और दरिया की साइडों पर जो एरिया खाली है वो डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल होगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के थोड़ा सा मास्टर प्लान का हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 200 फुट रोड, 300 फुट रोड और 500 फुट रोड जो आगे आने वाले वक्त में बनाए जाएंगे। लोकेशन की इम्पोर्टेंस के हवाले से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 फेजेस हैं, लेकिन अभी हम पहले 2 फेजेस को देखेंगे। ये फेज 1 है और ये फेज 2 का एरिया है, और ये लाहौर का वो एरिया है जहाँ लाहौर की तमाम मेन कमर्शियल मार्केट्स जो है वो मौजूद हैं। यहाँ से एक प्रपोज रोड जो है वो निकाला जा रहा है बंद रोड से, जो कि आपको सीधा लाहौर कराची मोटरवे पे एक्सेस देगा, और यही बंद रोड बाबू साहब से आपको रावी टोल प्लाजा की तरफ ले जाता है। इस एरिया का AQI इंडेक्स जो है वो इस एरिया से बेहतर है। यहाँ पर जो है ज़्यादा इंडस्ट्रियल फोकस्ड है, और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक अपना इंडस्ट्रियल जोन भी इस एरिया में आ रहा है। लाहौर मास्टर प्लान 2050 में आपके सामने दोबारा शेयर करता हूँ, तो आप इसमें देखिए कि इसके अंदर लाहौर का जो आने वाला एयरपोर्ट है, नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी लोकेशन भी इसी मोटरवे M2 के ऊपर दिखाई जा रही है, और इसके साथ नीचे जो है वो कैलगेरिया इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस सारी बात से हमें ये पता लगता है कि आने वाला लाहौर जो है उसमें सारी डेवलपमेंट जो है जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो अब इस एरिया में दी जाएगी। गवर्नमेंट का सारा फोकस भी इसी तरफ है, और इसी सिलसिले में जिस मैंने आपको बताया कि काला चकाकू पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेज जो हैं वो ऑलरेडी 2007 और 2008 में गवर्नमेंट यहाँ पहले ही शिफ्ट कर चुकी है। यहाँ आने वाले वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, और 2024 में उनका जो काम करने जा रहा है वो ये कि प्राइवेट डेवलपर्स को ऑन बोर्ड लेके आ रहा है। और आपको पता है कि प्राइवेट डेवलपर जब भी किसी एरिया में एंटर होता है तो पाकिस्तान के अंदर हमने यही देखा है कि प्राइवेट डेवलपर्स ही उस एरिया को डेवलप करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी आने वाले चंद ही सालों में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट डेवलपर्स को लेकर आएगी, जिससे इस एरिया के अंदर बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी, और ये जो लोग हैं जो हमेशा से एक अच्छी डेवलपमेंट से महरूम रहे हैं उनको एक अच्छी डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। इस हवाले से आपके बाकी अगर कोई सवाल है तो आप ये समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। Area, few
फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है वो सारा का सारा रूडा है। और आतिफ भाई ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है उसके बाद इस बात में किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि आइंदा आने वाले तमाम डेवलपर और तमाम अच्छी सोसाइटियों के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो रूडा की टेरिटरी में ही है। और इस बात का भी आप सबको यकीन होगा कि जो इस टेरिटरी में सबसे पहले लीड करेगा, जो प्राइवेट डेवलपर या कोई भी डेवलपमेंट सबसे पहले करेगा, तो जो लोगों की ज़रूरतें हैं, जो वहाँ शहरों में लोग काम करते हैं, हम बैरियर टाउन में बेशुमार लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन हमारा मोस्टली कंज्यूमर या कस्टमर जो वो बिलोंग करता है अदर सिटीज़ से या ओवरसीज पाकिस्तानियों से। अभी तक अंदरून शहर की 90% आबादी ने गुलशन रावी, इलामा इकबाल टाउन और अंदरून शहर से लोगों ने इस तरफ विजिट करनी नहीं शुरू की। कुछ सोसाइटियाँ बनी हैं जो कि इतनी ब्रांडेड या इतनी वेल इक्विप्ड नहीं है। तो आने वाले दौर में सिर्फ इस बात का यकीन हम दिलाना चाहते हैं आप लोगों को कि इंशाल्लाह BSM उस टेरिटरी में अगर एंटर होता है और हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी तमाम रियल एस्टेट लोगों के लिए, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें वहाँ से वापस आएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्रंच है, इसको डीलर के तनाज़र में देखते हुए और डीलर की माली हालात को तो जो न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ है लाहौर लेके आ रही हैं, उसका जो नया प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर आप लोग फुल खुल के इन्वेस्टमेंट करें, उसके पेमेंट प्लान सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और जो रूडा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है वो बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और रूडा आप लोगों ने सुना ही है कि जो रूडा की प्लानिंग है, रूडा की चीज़ें हैं, जो सराउंडिंग वो कवर कर रहा है, ये आने वाले टाइम पे बेहतरीन फ्यूचर होगा। और ख़ास तौर पे जो होलसेल मार्केट है वो रूडा एक एरिया जो है फ्यूचर के अंदर आप लोगों को कमर्शियल दे रहा है, जहाँ पे सारे होल सेलर जो हैं वो नई मार्केट वहाँ पे डेवलप करेंगे। तो इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।